دوستو یہ جنوب مشرقی ایشیا کا ایک چھوٹا سا اسلامی ملک برونائی ہے۔ محض 6,500 مربع کلومیٹر کے رقبے کا یہ ملک دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ اعلیٰ ترین معیار زندگی کے حامل ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اس کی عوام معاشی لحاظ سے انتہائی پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کا ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہاں تعلیم اور صحت جیسی سہولیات بھی مفت ہیں۔ لیکن دوستو اس ملک کی شہرت کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ دراصل برونائی ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں آج بھی مکمل طور پر بادشاہت کا راج ہے۔ یہاں کا بادشاہ ہی ملک کے تمام تر معاملات دیکھتا ہے اور عوام کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ برونائی آج تو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ملک ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں آخر ایسا کیا ہوا جس نے اس ملک کی قسمت بدل کر رکھ دی؟ اس ملک کی معاشی ترقی کا راز کیا ہے؟ اس امیر ترین ملک کے بادشاہ کے پاس کتنی دولت ہے؟ یہاں کے عوام کو ملنے والی مفت مراعات کے پیچھے شاہی خاندان کے کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو اس ملک کا آفیشیل نام برونائی دارالسلام ہے۔ یہ براعظم ایشیا کے جنوب مشرقی جانب بورینو نامی جزیرے پر واقع ہے۔ اس بڑے جزیرے کے باقی علاقے پر انڈونیشیا اور ملائیشیا کے کچھ حصے بھی واقع ہیں۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد ہوا تھا۔ آج جنوب مشرقی ایشیائی ریاستوں میں برونائی سنگاپور کے بعد انسانی ترقی کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی رپورٹس کے مطابق برونائی کی فی کس قوت خرید دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر ہے۔ دوستو برونائی میں کئی صدیوں سے بادشاہت کا نظام چلا آ رہا ہے۔ 15ویں سے 17ویں صدی تک برونائی کی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور شمالی بورنیو سے جنوبی فلپائن تک ان کی ہی حکومت تھی۔ 19ویں صدی میں یہ سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ برطانیہ نے اس زمانے میں اس خطے میں اپنی نو آبادیات بنانی شروع کر دی تھیں۔ برطانیہ اب تک ان کے بہت سے معاملات میں مداخلت بھی کرنا شروع ہو چکا تھا۔ بالآخر 1888 میں برونائی برطانیہ کے مکمل طور پر زیر کنٹرول چلا گیا۔ اس کے بعد 1984 میں برونائی برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد ہو کر ایک آزاد ملک بن گیا اور اس وقت کے بادشاہ حسن البلقیہ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ دوستو تخت برونائی پچھلے 56 برس سے اسی سلطان حسن البلقیہ کے پاس ہے۔ یہ 21 برس کی عمر میں 1967 میں برونائی کے 19ویں بادشاہ بنے تھے۔ برونائی میں آج بھی آمرانہ بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ یہاں پارلیمنٹ تو ہے لیکن انتخابات نہیں ہوتے۔ آج کل کے دور میں اکثر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک میں بادشاہ یا ملکہ کا عہدہ تو موجود ہوتا ہے لیکن یہ عہدہ صرف علامتی ہوتا ہے اور ملک کی باغ دوڑ وہاں کے وزیر اعظم یا صدر کے ذمہ ہوتی ہے جو کہ منتخب شدہ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو برونائی میں ایسا بالکل بھی نہیں۔ برونائی میں ملک کے تمام معاملات بادشاہ ہی دیکھتا ہے، بلکہ سلطان حسن البلقیہ نے تو اپنے اختیارات کا دائرہ کچھ زیادہ ہی وسیع کر رکھا ہے۔ یہ یہاں کے وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی ہیں۔ عام طور پر جب کسی ملک کا سربراہ کوئی فیصلہ لیتا ہے تو اسے اپنے وزراء کی رائے اور مشورہ درکار ہوتا ہے، لیکن بادشاہ حسن البلقیہ چونکہ بیشتر وزارتوں پر خود ہی فائز ہیں اس لیے وہ تمام فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ قانونی طور پر بھی حسن البلقیہ کے پاس بہت سی پاورز ہیں، وہ مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ انہی کا استعمال کرتے ہوئے 2006 میں انہوں نے برونائی کے دستور میں کچھ تبدیلیاں بھی کی تھیں۔ انہیں برطانوی رائل نیوی اور ایئر فورس میں اعزازی طور پر کمیشن بھی مل چکا ہے۔ دوستو کنگ حسن کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق $30 بلین کے لگ بھگ ہے۔ برونائی میں ان کا شاہی محل دنیا کا سب سے بڑا رہائشی محل سمجھا جاتا ہے۔ یہ 2 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس شاندار محل میں کل 1788 عمدہ ترین کمرے، 257 بہترین ڈیزائن شدہ باتھ
रूम्स, 5,000 अफराद की सिटिंग की गुंजाइश वाला एक बड़ा हॉल, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी करने की पार्किंग स्पेस, 5 स्विमिंग पूल्स और एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद भी है जिसमें 1500 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश है। दोस्तों, इस शानदार महल के अलावा भी बादशाह के बहुत से महलात हैं। गाड़ियों की बात करें तो किंग हसन के पास हज़ारों की तादाद में लग्जरी गाड़ियां हैं। इनमें सोने से बनी एक रोल्स रॉयस भी शामिल है, जबकि फेरारी, बेंटले, बुगाटी, मैक्लारन ये सब भी बादशाह की इसी लग्जरी कलेक्शन का हिस्सा हैं। इनके पास अपने उम्दा तरीन प्राइवेट जेट्स भी हैं जिन पर सोने की तह चढ़ाई गई है। बादशाह की अमीरी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि बादशाह सिर्फ अपने बाल कटवाने के $20,000 अदा करते हैं, यानी ये पाकिस्तानी तकरीबन 56 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में ब्रुनई की सालमियत को बहुत से ख़तरात का सामना था। 1888 में ये बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम चला गया था, जिसके बाद इसके बादशाह को कोई भी फ़ैसला करने के लिए बरतानिया की रजामंदी भी दरकार होती थी। इसकी मईशत का भी बुरा हाल था। यहाँ की करेंसी कौड़ियों के भाव हो चुकी थी। लेकिन फिर 1929 में ब्रुनई में तेल और कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिसने ब्रुनई की किस्मत ही बदल कर रख दी। आइंदा बरसों में मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज ने यहाँ काम शुरू कर दिया। तेल और गैस की एक्सपोर्ट से ब्रुनई की मीशत को पर लग गए। लेकिन फिर दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई। जापान ने 10,000 फौजियों की मदद से ब्रुनई और कुछ करीबी ममालिक का कंट्रोल हासिल कर लिया। 4 सालों में जापान ने ब्रुनई का हशर नशर कर दिया। स्कूलों में जापानीज़ ज़बान सिखाई जाने लगी। सरकारी अफसरान को जापानीज़ सीखने पर मजबूर किया गया। यहाँ ब्रुनई की करेंसी की बजाय अपनी करेंसी जापान ने राइज की। तजारत बिल्कुल बंद होकर रह गई। आखिरकार 1945 में ब्रुनई की फ़ौज ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ब्रुनई को जापान से वापस लेने के लिए हमला किया। अमरीकी एटमी हमलों के बाद जापान वैसे भी कमज़ोर पड़ चुका था, इसलिए जापान ने ब्रुनई में हथियार डाल दिए और ब्रुनई की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। 1970 की दहाई में ब्रुनई में माशी तरक्की अपने अरूज पर थी। तेल और गैस के ज़खायर इस कदर तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे थे कि माहिरीन ने हुकाम की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई कि कहीं ये ज़खायर मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म ना हो जाएं। दरअसल तेल की दरियाफ्त से पहले यहाँ दूसरे शोबों में भी काम जारी था, लेकिन अब तो मुल्क का तमाम तर इन्हसार सिर्फ तेल और गैस पर ही था। दोस्तों, आज ब्रुनई 1,80,000 बैरल रोज़ाना तेल की पैदावार के साथ जनूब मशरकी एशिया में तेल की पैदावार का तीसरा बड़ा मुल्क है। आपने शेल पेट्रोलियम कंपनी के बारे में यकीनन सुन रखा होगा। ऐसी ही एक कंपनी ब्रुनई में भी है जिसका नाम ब्रुनई शेल पेट्रोलियम है। इस कंपनी का ब्रुनई की तरक्की में एक इंतहाई अहम किरदार है। साल 2021 की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की कुल GDP का तकरीबन निस्फ तेल और गैस से ही आया। ब्रुनई की पर कैपिटल GDP साल 2021 में लगभग $32,000 थी। अगर पाकिस्तान से इसका मुवाजना किया जाए तो इसी साल पाकिस्तान की पर कैपिटल GDP सिर्फ $1,500 थी। यही वजह है कि ब्रुनई के शहरियों का म्यारे ज़िंदगी बहुत बुलंद है और तमाम शहरियों के पास ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात, अच्छा घर और गाड़ी वगैरह दस्तयाब हैं। हुकूमत शहरियों को मुफ्त प्लाट्स, सस्ते घर और सस्ती गाड़ियों की फराहमी यकीनी बनाती है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी इंतहाई कम हैं। शहरियों के लिए तालीम और इलाज की सहूलियात भी मुफ्त हैं। किताबें, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। अगर किसी शहरी को तालीम या इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़े तो इसका खर्च भी हुकूमत के ज़िम्मे होता है। दोस्तों, तेल के ज़खायर ख़त्म होने के ख़तरे के पेश नज़र आज ब्रुनई की हुकूमत ने खेती बाड़ी, जंगलात और मछली की पैदावार को भी मुल्क की आमदनी का ज़रिया बना लिया है, क्योंकि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ब्रुनई के तेल और गैस के ज़खायर 2035 तक ख़त्म होने के करीब हो जाएंगे।
तख्ते ब्रुनई को अपनी शाखर्चियों की वजह से इंटरनेशनल मीडिया की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। बादशाह हसनुल बल्किया पर एतराज़ात उठाए जाते हैं कि उन्होंने मुल्क में आमिराना बादशाहत राइज कर रखी है। उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अवाम को किसी किस्म का कोई हक़ इरादी हासिल नहीं। यहाँ आज़ादी राय भी नहीं। अवाम को माशी तौर पर थोड़ा सा रिलीफ देकर ये शाही ख़ानदान खुद हर तरह की पाबंदियों से आज़ाद है। यही वजह है कि बेतहाशा कौमी आमदनी के बावजूद अवाम के और बादशाह के ख़ानदान के लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मुल्की आमदनी का बड़ा हिस्सा बादशाह और उनके ख़ानदान की जेबों में ही जाता है। बादशाह हसनुल बल्किया के 5 बेटे और 7 बेटियां हैं। इनमें से एक बेटा शहज़ादा अब्दुल मतीन सोशल मीडिया पर एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं। ये महंगी तरीन जगहों पर छुट्टियां एंजॉय करते हैं और आला तरीन जेट्स में सफ़र करना इनका मामूल है। इनकी उम्र महज 31 वर्ष है और दुनिया भर के लोग इनके शाहाना लाइफ स्टाइल पर रश्क करते हैं। दोस्तों, इन्हीं बादशाह के एक भाई शहज़ादा जाफरी बल्किया पर, जो वज़ीर ख़जाना भी रहे, $15 बिलियन की खुदपुर्द का इल्ज़ाम है। शहज़ादा जाफरी 600 से ज़ायद महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़, 2000 लग्जरी गाड़ियों और 9 जेट्स के मालिक हैं। इसी तरह बल्किया ख़ानदान बहुत सी कंपनीज़ का मालिक भी है जिनका कोई रिकॉर्ड पब्लिक के लिए दस्तयाब नहीं। आवाम की हमायत हासिल करने और बगावत से बचने के लिए आवाम को थोड़ी बहुत सहूलियत दी जाती हैं, जबकि इसके बदले शाही ख़ानदान को आवाम की तरफ से खुली छूट मिली हुई है। इसके बावजूद बादशाह और उनका ख़ानदान आवाम में मकबूल तो हैं और आम तौर पर ब्रुनई के आम लोग अपने शाही ख़ानदान और बादशाह से मोहब्बत ही करते हैं। दोस्तों, जिस तरह सुल्तान हसनुल बल्किया के असासों की फहरिस्त बहुत तवील है, इसी तरह इनका नाम भी बहुत लंबा है। इनका पूरा नाम अरबी में सुल्तान हाज हसनुल बल्किया मौज़ुद्दीन वद्दौला इब्नुल मरहूम सुल्तान हाज उमर अली सैफुद्दीन सादुल खैर वालिदैन है। इनकी उम्र इस वक्त 77 वर्ष है। यहाँ स्कूल जाने वाले 51% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। तालीम मुफ्त है, शायद इसी वजह से शरह ख़वानदगी 97% है। यहाँ इस्लामी कवानीन के तहत ही ज़िंदगी गुजारी जाती है। शराब और इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी है। ब्रुनई को एशिया का वीनस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दरिया के किनारे शहर आबाद हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सयाह इस छोटे से मगर माशी फ़िक्रों से आज़ाद मुल्क को देखने जोक तर जोक आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपका भी दिल चाहता है ब्रुनई को देखने का? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।